یار یہ جو بندے آپ کو یہ بات کہتے ہیں نا طیب صاحب، ان کو لے کے آ جاؤ یار، ان کو آ جائیں، ہمیں 2 4 ریفرنس درکار ہے۔ پچھلے کافی ٹائم سے ہم نا ریفرنس ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں مل نہیں رہے۔ 2 4 ریفرنس چاہیے، انہیں کہو کہ آ جائے 2 4 ریفرنس ہمیں دے دیں، بڑی ٹینشن اوکے ہے۔ بھائی جان، میں کوشش کروں گا کہ آپ بہت کی شکریہ لائف میں طیب ساتھ دے دوں۔ جی، جزاک اللہ طیب صاحب۔ دوسرے کالر اٹھانے ہیں، آپ نیچے تشریف رکھیے۔ استاد محترم یہ آ گئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی پھر کوئی آج قادیانی مردیہ آیا؟ جی استاد محترم، ابھی بات چل رہی تھی، 1 2 ہیں وہی پرانا طریقہ، کال پہ آنے کے لیے تو نیچے کمنٹ میں بڑے بڑے دعوے، جب کال پہ آئے تو دیکھیں، ہم اس کا دفاع تو نہیں کرنے آئے، ہم تو اس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں۔ یار کوئی ابھی سرے دستنا مجھے ایسا انجینئر مرزا محمد علی جیلمی صاحب کا کوئی اسٹوڈنٹ چاہیے کہ جو یوٹیوب پہ آ سکے۔ میں ابھی یوٹیوب پہ لائیو ہوں، تو کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے۔ لبو یار، لبو کوئی بندہ لبو۔ آؤ بھائی آؤ، جلدی کرو۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نہ میں وہابی نہ میں سنی، میں ہوں مسلم بس۔ یہ ہمارا کس کا اس کا حکم ہے؟ مرزا کا، اور مرزا نعرہ محمد تو علی کا۔ صحیح مار لو یار۔ یار بات تو ہاں کرنے دے، بات تو کرنے دیں، بات تو کرنے دیں ان کو۔ جی بتاؤ بتاؤ، اس کو غلط کیوں کہہ رہے؟ جب وہ حق بات کر رہے تو غلط کیوں بول رہے؟ ٹھیک ہو؟ بولو بھیا، آپ کا ناراض نہیں نام، ہونا، بولو، ہاں محبت سے بولو۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا تنویر ہے، تنویر۔ تنویر بھائی، آپ انڈیا سے ہیں؟ ہاں جی، میں پاکستان سے ہوں بھیا۔ پاکستان؟ اچھا، کون سے علاقے سے؟ جی میں پنجاب سے ہوں۔ پنجاب؟ پنجاب کون سا شہر ہے؟ منڈی بہاؤدین کا۔ منڈی بہاؤ۔ سرائکی ہیں آپ؟ جی بھیا، سرائکی ہیں آپ؟ نہیں سراکی نہیں۔ ہوں، کون وہ پنجابی؟ چھوڑو، کیا کرنا آپ میں ڈیٹیل کو، آپ یہ بتا رہے کہ مرزا علی اصل کو میں آپ لوگوں نے کافر آپ بنا مجھے دیا، نا لگ کس انڈیا وجہ کے سے رہے بنا ہیں، دیا میں یہ مجھے بول لگ رہا ہے رہا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ ہوں۔ نہیں جھوٹ نہیں بول رہے، صحیح بول رہا اچھا، ہوں، کیوں جھوٹ انڈیا، بولے؟ انڈیا کے لگ رہے ہیں مجھے یار، ویسے آواز سے نا۔ اچھا جناب، یہ میں یہ بول رہا ہوں، مرزا جو ہے اس نے پورا آپ لوگوں کو ریفرنس دیا ہے آپ لوگوں کی کتاب سے، پھر اس کو آپ لوگ کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ میرے کو یہ صحیح نہیں ہو سمجھ آ گیا، رہا صحیح ہو گیا۔ آپ، ہے۔ جی آپ سے میں بات کرتا ہوں، تھوڑا سا یہ مجھے لائیو براڈ شروع کر لینے تھے، پھر بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے؟ جی، مشکل نہیں، جی شروع ایک کرو۔ منٹ رک جائیں، رک جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، لبیک 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 یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔
अभी हम टिक टॉक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर लाइव हैं, और हमारे साथ कुछ इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब के स्टूडेंट मौजूद हैं, उनके साथ गुफ्तगू जारी है। तो टिक टॉक के ऊपर क्या नाम है आपका भाईजान? जी भाईजान, भाईजान आपका माइक बंद हो गया। नहीं बंद नहीं आने भैया। भाई अच्छा, तो आप पहले तो ये बता दें कि आप इंजीनियर साहब के स्टूडेंट हैं? जी मैं उसको फॉलो करता हूँ, फॉलो करते, उसके फॉलोअर वीडियो हैं आप? देखता हूँ और उसका सपोर्ट करता हूँ उसको। जी, जी सपोर्ट बिल्कुल। करते हैं और फॉलोअर, ठीक है, सही हो गया। मुझे बड़ी खुशी हुई जी आपसे बिल्कुल मिलके। सही। नाम क्या बताया था आपने? जी तनवीर। तनवीर साहब, तनवीर फॉलोअर हैं आप और सपोर्टर हैं, ठीक है ना? जी सही हो गया। अच्छा, आपकी दुनिया की तालीम कितनी है? मेरा दुनिया की मैडम तालीम मैट्रिक कितनी है है। आपकी? मैट्रिक मैट्रिक। तो ये मैट्रिक के स्पेलिंग क्या हैं? MATRIC MATRIC TRIC TRIC। अच्छा, तो ये तो आपकी दुनिया की तालीम हो गई है जो आपने स्पेलिंग सुनाए हैं। जी। तो दुनिया दीन की तालीम अब कितनी सही है? है गलत है मालूम नहीं। दीन की तालीम कितनी है? दीन का जो है मैं बस ये कुरान पढ़ा हुआ है कुरान पढ़े और हैं इसी आप? तरह अच्छा, अल्लामा मुफ्ती शेख सबका सुनता है बस। अच्छा, बड़ी बात है। जी अच्छा, तो आप यानी कुरान नाजरा जी। कुरान पढ़े हैं? जी सही हो गया। तो मेरे भाई कुरान गवानी के साथ पढ़ सकता हूँ बस। सही हो गया, ठीक हो गया। तो नमाज वगैरह सही आती है आपको? जी बिल्कुल। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी। इन अच्छा, ये आपने कहाँ से सीखी थी? क्या नमाज कहाँ से सीखी थी? वो सब क्या कर रहे हैं आप लोग? जो ये बता रहे मिर्जा के बारे में बोलो, ये कहाँ से बताएं तो, सीखी, आपने क्या कहाँ सीखी, से क्या सीखी थी करना? मैं नमाज? अपने अब्बा से सीखा। अब्बा से सीखी। माशाल्लाह, आपके अब्बू अच्छे हैं, नमाज जी। आपने उनसे सीखी है। जी सही हो गया, माशाल्लाह। तो रोजे वगैरह कहाँ से और ये सीखे मिर्जा थे? से भी सीखा है। मिर्जा ने भी नमाज के बारे में कुछ वीडियो है उसका सुना ही सही नहीं। हो गया। नहीं, वो मिर्जा के बारे में भी आती। अच्छा, रोजे कहाँ से सीखे थे? जी रोजे हाँ रोजे कहाँ से सीखे थे? रोजे रोजे हाँ, पर फर्ज है, नमाज, सीखना रोजा, पड़ेगा हज, इसमें क्या ज़कात होता है ना? वाजिब रोजे। है, वो सब वाजिब है। नहीं, हाँ, वाजिब तो है, सीखे कहाँ से हैं? मतलब उनके बारे में वो मालूमात तो कहाँ से ली थी? दीन का बुनियाद है भैया, सीखना है उसको। जी वो मुझे भी पता है, मैं कह रहा हूँ बुनियाद है, वो कहाँ से सीखे थे आपने? मैंने हम्म, मैं वही करीबी अपने घर वालों से देख के सीखा है, करीबी मदरसे में है। करीबी मदरसे में। एक तो घर वालों से और करीबी मदरसे। करीबी मदरसा कौन सा है आपका? हाँ बाउल उलूम उस्मानिया। जी, कौन सा मदरसा है? बाबुल उलूम उस्मानिया। बाबुल उलूम उस्मानिया। ये कौन से मकतबे फिक्र का है? अरे अहले सुन्नत का। अहले सुन्नत, देवबंद, वहाबी, बरेलवी, शिया, कौन से अहले सुन्नत? ये अहले हदीस का है। अहले हदीस वो ही ना, वो भी अहले हदीस भी अहले सुन्नत ही कहलवाते हैं। ठीक हो गया, अहले हदीस का, ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ठीक है, चलो अब आ जाते हैं कि ये दो चीज़ें आपने अपने अब्बा से नमाज सीखी है, रोज़े आपने घर वालों से और करीबी मदरसा वाबियों के मदरसे से सीखा। तो इंजीनियर मिर्ज़ा से क्या जी। सीखा? इंजीनियर मिर्जा से सबसे पहले ये
میں اس میں شک تھا کہ جو جنگ جمل ہوا، نہیں نماز اچھا روزے یہ کی جو صرف ابھی دو جنگیں چیزیں، ہوئے، ابھی دو چیزوں کی بات، جی ان دو چیزوں میں سے جی کوئی چیز بتاؤ، آپ نے مرزا جونیئر سے سیکھی ہے؟ جی سیکھا۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، اچھا اس نے اب کہا کہ یہ تم لوگ جو ہے شیعوں کو غلط کیوں بولتے ہیں، یہ کیا ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں نماز، ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں نا کون شیعہ، شیعہ؟ شیعہ نہیں لوگ، مجھے نہیں پتا۔ تو یہ جو ہے اس نے ایک صحابی نے پڑھتے ہوئے پیغمبر کے سامنے، اس نے ویڈیو دیکھا ہی نہیں آپ نے، نہیں ایسا انجینئر ایسا سے پڑھا آپ نے تھا جو لیکن سیکھا ہے نا پیغمبر نے وہ اس ذرا کو مجھے منع نہیں بتا کیا۔ دیجئے گا کہ میں نے یہ چیز سیکھی۔ وہی انجینئر نے بولا ہے، کیا؟ وہی انجینئر کا ویڈیو ہے کہ ایک صحابی کو اس نے بولا نماز پڑھو، تو وہ ہاتھ جو ہے، انجینئر نے بولا ہے؟ جی بالکل، اچھا نہیں مختصر اس کا بتائیں ذرا، ویڈیو ہے آپ باقاعدہ۔ کے ساتھ نا کھا پی رہے ہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے کھانا پینا بند ہاں کر دیں بس تو ہیں؟ خلاص کھانا چھوڑ دیا، خلاص بتاؤ۔ بڑی مہربانی، تاکہ دیکھیں آپ دین سکھا رہے ہیں نا، تو دین ایسے تو نہیں نا کھاتے پیتے ہوئے تو نہیں نا سکھاتے۔ اوکے بتاؤ۔ ہوں۔ ابھی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، ہوں۔ میں بتاؤں یا آپ بتاؤں؟ جی جی نہیں آپ سے میں نے دین سیکھنا ہے نا، دین تو انجینئر صاحب نے جو آپ کو سکھایا ہے جی، کیا سکھایا تھا پھر؟ دیکھو انجینئر صاحب کا کام یہ ہے کہ تفرقہ مت پھیلاؤ، وہ اتفاق سے تفرقے کی بیٹھو، نہیں، میں نماز کی مسلم بات میں کروں، یہ نماز کے ہے۔ اندر کون سی چیز آپ کے گھر والوں نے آپ کو نہیں سکھائی تھی تو جو آپ نے اس سے آ کے سیکھی؟ نہیں، نماز ایک جیسا سکھائے، نماز میں کوئی نماز ایک فرق نہیں جیسی ہوئی ہے، چلو نماز صحیح میں ہو کیا گیا، فرق ہے؟ چلو شکر ہو ہاں گیا، بس ابھی بس رک جائیں، میں لکھ لوں ذرا، نماز وہی ہے جو آپ نے گھر سے سیکھی، جی ٹھیک ہو گیا، بڑی اچھی بات۔ اچھا روزے کے اندر کوئی نئی چیز اس نے سکھائی ہو آپ کو؟ نہیں کچھ نہیں سکھائی، نے کچھ بھی نہیں سکھایا، سیلف میں روزہ تو ایک جیسا ہے، ایک جیسا ہی۔ ایک اچھا جیسا ہے قرآن جو سب۔ آپ نے پڑھا تھا یہ آپ نے جی پہلے ہی کسی گھر والے نے سکھایا یا مدرسے نے سکھایا تھا یا انجینئر صاحب نے سکھایا آپ کو؟ قرآن میں گھر والے نے، گھر والوں نے، اچھا قرآن گھر والوں نے سکھایا ہے، ٹھیک، اچھی بات جی ہے۔ ہاں، امی نے کہ ابو نے؟ ابو نے سکھایا۔ ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ بڑے اچھے ہیں آپ کے ابو تو، ماشاء اللہ۔ وہ حیات ہیں؟ ابو حیات ہیں؟ جی الحمدللہ۔ جی ماشاءاللہ، اللہ ان کی زندگی لمبی کرے اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، جنہوں نے آپ کو قرآن سکھایا، نماز سکھائی، روزہ سکھایا، ماشاءاللہ اتنا آپ کو اسلام سکھایا جی ہے آپ کو۔ اچھا انجینئر سے آپ نے کیا سیکھا ان چیزوں میں سے؟ جی یہ تین چیزیں مرکزی ہیں، قرآن ہے، سننا ہے، جی اور وہ ہاں، ان سے ریلیٹڈ یہ نماز اور روزہ ہے۔ یہ ابتدائی چیزیں جب آپ نے گھر سے سیکھ لی تھی تو انجینئر کی ضرورت کہاں پہ پیش آئی آپ کو؟ نہیں انجینئر کا میں ایک دن ویڈیو دیکھ رہا تھا، ہوں۔ تو اس میں وہ اتفاق کی بات کر رہے تھے، کس تو چیز میں کی بات اس کر رہا وجہ سے تھا؟ اس کو فالو کر رہا ہے، تو بات اتفاق، مسلم جو ہے اتفاق سے، ہر کوئی اچھا یہ تفرقہ یعنی میں یہ مت پھیلاؤ، آپ کو والدین اتفاق نے سے نہیں بیٹھو، سکھایا تھا، مدرسے نے اس نہیں کا کام۔ سکھایا تھا اتفاق؟ نہیں میں باہر جب پڑھنے جاتا ہوں تو کوئی سنی کوئی شیعہ فلان فسان بول کے الٹا سیدھا بولتا نہیں رہتا میرے ہے، سوال کا لیکن جواب مرزا دیں کا آپ، یہ میرے ذہن سوال ہے کا کہ سب جواب جو ہے، دیکھیں، میرا سوال جی ادھر کا ادھر ہی رہنا ہے، آپ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، نہ ہی مجھے سمجھ آنی ہے نہ ہی آپ کو سمجھ آنی ہے۔ نہیں کرے گا، دیکھیں بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ سنیں میرا سوال سنیں، ہاں آپ کہہ رہے ہیں میں نے اتفاق سیکھا ہے اس سے، جی وہ سارے ہی آج کل کے مردئی، اماد الاسلام بھی ابھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی یہی ڈرامے بازی کرتا ہے، اتحاد بین نہیں، ڈرامے بازی کی بات ہے ہی نہیں، ڈرامے بازی۔ ہاں ڈرامے بازی کی تیری کیا پتر بات ہے؟ واری تیری میں کلاس لینا ہونے تو تھوڑا سا لے لے، پہلے میں ایک بندے دی لے لواں پھر تیری لینا وا آگے۔ ہاں جی طارق جمیل بھی وہی سیم ہے، یہ نہیں بھی سنے وہی دو، ہے، دونوں سنے دو، نہیں سیم میں ہے، نے اس طارق میں جمیل کوئی کی فرق بات ہے ہی ہی نہیں نہیں۔ کی، میں نے بات ہی نہیں کی ادھر جی ادھر کسی کی دونوں ایک بات کی۔ جیسا ہے۔ میرا سوال سنا ہی نہیں آپ نے، ہاں بتاؤ میں نے کیا سوال کیا؟ ہاں کیا کیا سوال پوچھا ہے کیا؟ بتاؤ؟ تو آپ کیا ایسے پوچھا آپ ہی نے؟ خام کا ہی وہ نماز کہاں کہانی سے مجھے سیکھا؟ سنا رہے تھے، میرا سوال تو سننے پہلے آپ۔ نہیں کہانی نہیں سنا رہے، میں صحیح بات بتا رہا ہوں۔ اب لوگ کیا بتا اس رہے کو ہو؟ وہی تو جو میں نے طالب سوال ابھی بول رہے ہیں وہ کیا، نہیں پورا تو آپ کیا مسلمان بتا کو رہے ہیں پھر؟ یہ ایک تو جگہ وہی، کرنے کی چکر میں ہے،
क्या करने के चक्कर में? जी, मुसलमान सब एक करने के चक्कर में है वो लोग। ओ भाई बात सवाल तो मेरा सुन लो। सवाल अभी मैंने किया कोई नहीं। आप कौन सी मुझे कहानी सुना रही है? सवाल तो मैंने की ही नहीं। हाँ बताओ, अभी क्या पूछना है आपने? मैं वो बता देगा कोई। मैं ये कह रहा क्या हूँ कि पूछना है? देखें, ये सारी चीजें आपने सीखी थी घर वालों से और मदरसे से, ऐसा ही है? घर वालों से नमाज, भी सीखी, रोजा, मदरसे भी सीखी। हाँ कुरान, बिल्कुल सारी चीजें आपने घर वालों से और मदरसे से सीखी, ऐसा ही? जी, ठीक हो गया ना? सीखा हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इंजीनियर से इसके आपने बाद कौन सी चीज सीखी है कि जो आपको घर वालों ने, आपके वालिदैन ने और आपके मदरसे ने आपको नहीं सिखाई थी? वो वाली चीज बताइए। नहीं, घर वालों उसका आप फिर बोलेगा कहानी बना रहे। मैं बोलता हूँ जब बाहर निकलते हैं, नेट आते हैं, घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो बचपन से सबको सिखाता है। भाई टू दी पॉइंट। जब बाहर जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, पढ़ने जाते हैं। तनवीर भाई, आप मौज मस्ती जी, के इरादे जी, में लगता है। जी। अगर तो मौज मस्ती के मेरे पास इतना टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अच्छा, कुछ मुझे भी नहीं। मेरे टू दी मेरे पॉइंट आप मुझे मेरे जवाब को दे दें कि तकलीफ हो रहा है जो यार। चीजें आपके घर वालों ने नहीं सिखाई या आपके मदरसे ने नहीं सिखाई थी, वो एक चीज बताइए हाँ। कि ये चीज मुझे इंजीनियर मिर्जा ने सिखाई है। देखो, उसका वीडियो देखता हूँ मैं, उसका फॉलोअर है। जब से उसने वीडियो बनाना शुरू किया उसका फॉलोअर है। वो सही बात जो करता है वो सनद के साथ सवाल करता करते है। हैं, मैं कोई सवाल और कर रहा हूँ, आप इसलिए मुझे बोल रहा हूँ कोई मैं। स्टोरी सुना रहे हो। यार मैंने सवाल क्या किया आपसे? सवाल जी। repeat करें। उसने क्या सिखाया मैं बोलता हूँ, कोई मसला नहीं है। किस बात से मुतासिर हुआ मालूम है उसके? बताओ। और भाई कोई चीज सीखी, आप कह रहे हैं मैं उसके जो है, स्टूडेंट हूँ, उसका ये जो- फॉलोअर हूँ। भाई फॉलोअर कहते हैं पैरवी स्टूडेंट करने हो वाला, बिल्कुल। मुकल्लिद। आप सही। किस चीज की जी, उसकी स्टूडेंट तकलीद हूँ। करते हैं, किस चीज की पैरवी करते हैं, किस चीज उसका के जो दो जंग आप है, फॉलो कर रहे जमाल हैं? वो- मेरे भाई आप को वाज़ेह तरीन सवाल किया, आप मुझे इधर उधर की कहानियां सुना रहे हो। कहानी नहीं सुना रहे भैया। उसने जो कहा है सबसे पहले जो है अमीर माविया जो है वो गलत पर है, लेकिन हम लोग सब बोलते हैं वो सही पर है। वो पूरा हदीस सुना रहे। सुने तो सही, आप कोई जी। शराब वगैरह तो नहीं पीते? कोई नशा वगैरह कोई यूज करते हो? जी कोई शराब वगैरह पीते हो? ना, ऐसा कुछ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई फीम गांडा वगैरह नहीं करवाते? नहीं। ओरल सेक्स वगैरह कोई आदत पड़ी हो आपको? नहीं, नहीं। अहमदुल इस्लाम ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। अहमदुल इस्लाम भी तो रात की करवाता है? ऐसा कुछ भी आंदा नहीं, मैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। आप आंदा मैं छੱਡ सीधा नहीं बोल रहे, सही बात बताओ। मैं सही, इस तरह नहीं अहमदुल करो। इस्लाम का भी आया मैसेज, कह रहा मैंने छोड़ दिया ये काम। पहले वो ना मदरसे च मौलवियां को करवाता नहीं, ऐसी बात नहीं। हाँ अच्छा हाँ, मदरसे में इतना नहीं पढ़ा है मैं, बस सिर्फ कुरान पढ़ा है बस। अच्छा, सुने तो आगे मेरे साथ जिंदगी के जो वो यूट्यूब के ऊपर तौर बात तरीके कर, है। हाँ वो यूट्यूब पर बात कर रहा था अभी। अच्छा, जी बात ये है कि देखिए, जी। एक छोटा सा सवाल था, उसको आपने खींचा तुरही करके इतना लंबा कर दिया है, जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा कोई नहीं, एक कोई चीज लंबा बता नहीं दें किया। कि जो आपको घर से पता नहीं चली, मदरसे से पता नहीं चली थी, आप जब मैट्रिक आपने किया तो वो आपको पता नहीं इत्तिफाक, यही चली। तो मैं आपको बोला, इत्तिफाक कोई करना एक चीज सिखाया, बताइए। यही सिखाया। वो घर में नहीं सिखाया, वही क्या एक है सिखाया? इत्तिफाक। उसने क्या सिखाया आपको? वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ये उसने हदीस पर आया और बोला पूरा ये मुसलमान सिखाया जो उसने, है बात आसिमु बिहब्लिल्लाहि जी जमीअन। बिल्कुल। अच्छा, हाँ, ये सिखाया, बस रुक जमीअन वला बस तफर्रकू। बस ठीक हो, हाँ, बस इस पे रुक जी रुक। जी बताओ। इंजीनियर से आपने वात आसिमु बिहब्लिल्लाह सीखी, तो ये तो कुरान के अंदर थी, ये आपने उससे क्या सीख ली है? ये कोई नोखी बात है? आप तो कह रहे हैं मैंने कुरान मदरसे से सीखा था, अपने बाप से सीखा है। ये तो कुरान की है। इसका तर्जुमा वो बताए ना, इसका मतलब क्या है ये? नहीं, कुरान क्यों नाज़िल नहीं, किया? इसका तर्जुमा आपने इंजीनियर से सीखा है कि ये आयत सीखी है? आयत तो नाजिल हुआ है, लेकिन सीखा हुआ पहले से, लेकिन याद दहानी उसने कराई है।
यार आप ना मौज मस्ती के इरादे में हैं तनवीर साहब मेरे साथ। नहीं ऐसी बात नहीं, भाई मैं अभी कोई आप गलत कह बोल रहे रहा हूँ हैं कि आपको। भाई मैंने ये मुझे सिखाई तो मदरसे ने थी, मुझे घर वालों ने थी, लेकिन फिर मजीद वजाहत इसने सब बताई है। सिखाई। अब ये बता रहे हैं आप। हाँ मतलब उसके फॉलोअर्स है, वीडियो देखता हूँ तो ये इस वो तरह की बात फादर करते को हैं, छोड़े तो उसकी उसमें मारे गलत नहीं है। हुई। मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं ये आयत मैंने सीखी, ना भाई यार इस तरह ना तो गाली ये ना आयत दिया तो करो कुरान के यार, अंदर क्या कर मौजूद है, रहे हैं। पहले की मौजूद है। वो आपने फिर इसका मतलब है आपको आपके वालिदैन ने ये बताई नहीं, ये आयत सिखाई नहीं। आप तो कह रहे थे मैंने वालिदैन से सीखी है ये कुरान। सब ने सिखाया, नहीं, आपके कुरान क्या अब्बा सीखी को है। कुरान नहीं आता जिन्होंने आपको ये कुरान पढ़ाया था? आता है लेकिन उसका तर्जुमा सारे तर्जुमा तो भाई थोड़ी सुनाते हैं, आपके नहीं अब्बा पढ़ाते को हैं। इसका तर्जुमा नहीं आता था? वो नहीं मालूम भैया, वो नहीं सिखाया। भैया ये जब आप मैं वीडियो देखिए, देखा आपने जब उसने अपने ऐसा अब्बा बताया। से सीखा है तो आप बताएं ना कि मेरे अब्बा को नहीं आता था ये कुरान, उन्होंने मुझे सही नहीं सिखाया। बताएं। नहीं आने वाली बात तो है ही नहीं, आप फिर उल्टा दंदियां उधर निकालें। घुमा के लेके जा रहे हैं। तो ऐसी भाई बात नहीं है दंदियां मुफ्ती साहब। निकालना हल नहीं है, जो भी मर्जी हमारे सामने था वो आखिर में दंदियां निकालता है, दंदियां निकाल के साइड पे। बात सुनो, आपने उसको काफिर किस मुद्दे पर किया ये वो मेरे को पाक बताओ। आप छोड़ दे, वो बाद में, वो सारे मौजू बाद में। इस मसले को हल करें। आप कह रहे हैं हाँ। ये एक आयत मैंने उससे सीखी है, वात आसिमु बिहब्लिल्लाह, ये आयत कुरान की है। और आप कह रहे हैं मैंने कुरान घर वालों से सीखा, अपने वालिदैन से सीखा है। या तो हाँ। आप झूठे हैं या आपके घर वाले झूठे हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, नहीं, झूठा कौन सीखा है सब दोनों है, में से? लेकिन आप इंजीनियर झूठे जो या है आपके अब्बा वीडियो के झूठे हैं जरिए याद या दहानी आपकी अम्मा करते रहता झूठी है, है? याद दहानी करते रहता है, ये बोल देखें, रहा हूँ सुने मैं। तो सही ना। देखें, मैं जी। आपसे एक सवाल करूं, जी, उसका जी, जवाब बताओ। नहीं दे रहे। आप कह जी, रहे हैं बताओ, कि मैंने ये घर वालों से सीखी है, आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे मिर्जा जूनियर ने सिखाई है। भाई या तो आपके घर वालों को कुरान को नहीं आता, ये कहे ना कि उनको नहीं आता। हाँ कैसे नहीं आता, कुरान तो सिखा दिया उसने। सिखा दिया ना, तो ये आयत तो कुरान के अंदर थी, आपको लेकिन ये पहले उसमें पता होनी। तर्जुमा इंजीनियर से आपने उसका क्या सीखा? तफसीर कोई नहीं सुनाया, इंजीनियर उसका से क्या तर्जुमे सीखा? तफसीर उसके तफसीर सीखा है उससे। तफसीर सीखा है। घर वालों को तफसीर इसकी कोई नहीं पता। वही तर्जुमा जो है तफसीर इसके बारे में। वो ही ना हाँ? तर्जुमा और तफसीर आपके अब्बा को या आपकी अम्मा को नहीं आती है? हाँ नहीं आती। वो नहीं मालूम आता है नहीं आता है। नहीं मालूम क्या होता है। आप उनके बेटे नहीं है क्या, आप अपने अब्बा के? नहीं सिखाया उन लोगों ने, सिर्फ बस ओ कुरान भाई, पढ़ना मेरे सिखाया। सवाल का जवाब अरे, दे, आप अपने अब्बा के इसका- बेटे भी हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे है, क्या भाई हो आप गया? कह रहे हैं नहीं मालूम मुझे। बाप मेरे को को क्या तो पता, वो बेटे के तुम बारे सिखा- में, जब मैं बेटे वीडियो को बाप देखता के हूँ- बारे में इच्ची बिच्ची का पता होता है। दुनिया का ये कायदा कानून है। सब आप कहते मालूम सब नहीं। मालूम है, जिनकी लेकिन गोद के जो अंदर आप आप पले सवाल बड़े, कर रहे जिस हैं ना, घर में पले बड़े, उन्होंने आपको खिला पिला के इतना जवान बनाया, और जनाब आज ये सिला दे रहे हैं। आप कह रहे हैं उनको कुरान ही को नहीं तो आता। मेरा- मुझे नहीं पता उनको आता है कि तो नहीं आता। मेरा अब्बा खुद भी आप तो अभी कह रहे थे उसका कुरान जो फॉलोवर है मैंने है। घर से सीखा है। मेरा अब्बा खुद भी उसी का फॉलोवर है। अब्बा बोलते हैं ये ओ अच्छा भाई- बोलता है, इसलिए तो हम भी भाई सुनते हैं। ठीक हो गया। अभी जो मैंने ये देखे लिखा हुआ है हर चीज। कुरान आपने घर क्या से लिखा सीखा था, हुआ? उस टाइम आपने नहीं बताया था कि चले ठीक हो गया। चलो ये तो और फंस गए हैं आप, ये माशाल्लाह और फंस गए हैं कि आपके अब्बा भी कैसे फंस गए? उसके फॉलोवर हैं। इसका मतलब है अगर फॉलोवर आपके है, अब्बा उसके घर फॉलोवर वाले ने होते रोका तो नहीं वो अभी फिर तक। आपको ये सिखाते। आपने कहा नहीं मुझे इंजीनियर सिखाया है। नहीं इंजीनियर सिखाने की क्या बात है, वो वीडियो बनाते हैं, उसके ना, फॉलोवर हूँ मैं, ये नहीं, बोल रहा हूँ। अंज अभी आप नहीं, रोड अंज चला रहे नहीं, अंज नहीं। अभी आप रोड चला रहे, मैं अंज आपको और सुन रहा फंस गए आप। हूँ, आपसे मियां, आप हासिल और कर रहा फंस हूँ। गए हैं। कैसे आप फंस अपने गए? अब्बा को जलील और कैसे फंस गुआर गए? कर रहे हैं। ये नलायक किस्म की औलाद कुछ है। भी नहीं कर रहे, ये देख आपके ले जहन है कि भैया, आप ऐसे जो ही जहन में जो ले रहे हैं। ये इंजीनियर कुछ के भी नहीं है स्टूडेंट ऐसा। और फॉलोवर सारी दुनिया देख ले कि जनाब ये अपने सब वालिदैन देख को रहे अब हैं। जूतियां लगवा रहे हैं सरे बता। कुछ भी नहीं हुआ, सारी दुनिया के उसमें सामने। वालिदैन आता ही नहीं है, उसमें वालिदैन कहाँ से आ गया? उधर वालिदैन से जब कौन वो सी वीडियो ताकत नहीं? बनाता है, आपने- मेरा आपने वालिदैन कहा वीडियो मुझे- बनाता है, भाई देखिए आपने अभी मेरे कहा वालिदैन है वीडियो बनाता सारी है। दुनिया के सामने आपने वो- कहा है जी मैंने कुरान कुछ भी वालिदैन नहीं से कहा सीखा है। अभी आप कह रहे हैं कि सबसे नहीं सीखा मैंने है। कुरान जो है ना मिर्जा जूनियर से सीखा है। इब्तिदाई तालीम सब मदरसे से हासिल, कुरान सीखते हैं बस सीखते हैं, लेकिन बाद में जब माहौल में आता है वीडियो सुनते हैं, आपका सुनते हैं, और दूसरे का वीडियो- सुनते हैं, यार तो उसका वीडियो एक की फॉलोवर आप- बन जाते हैं। हाँ सुनो उसमें क्या है? तो सुनते सही यार, मुझे ना ही बताओ समझ भैया। आप कि आप पंजाबी या पख्तून है, हिंदी सिंधी कौन है आप?
नहीं ऐसे नहीं समझ आ रहा है मेरे को, सब समझ में आ रहा है, आप जिन्हें बोलो। तो सानू नहीं ना समझ आती पे ਤੁਹਾਡੀ अभी इतनी दुनिया बैठी मैं तो हुई है, सिंपल इधर उर्दू बोल YouTube के रहा हूँ। ऊपर इतनी दुनिया आ गई है और यहाँ टिकटॉक के ऊपर इतनी दुनिया बैठी है, क्या आप दर्श दे रहे हैं, क्या आपने सीखा क्या है, कुछ हमें भी तो बताए ना आपने मैं- क्या सीखा है उससे। यही तो मैं सीख रहा हूँ कि उसने पूरा मुसलमान एक करने के चक्कर में तुम लोग उसके पीछे क्या क्यों है पड़ा कि हुआ वो है? तो अल्लाह के नबी ने किया एक सबको, साहबा ने किया, वही तो ताबईन ने अल्लाह किया, के नबी तबा के ताबईन फरमान ने वो किया, सुनाता है, गलत 1400 बात तो साल के करता नहीं। तमाम बाबे बुजुर्गों ने एक ही की है, वो ये कौन सी तो नौकरी वही चीज आपने सुनाता है इससे वो। सीख ली है। उसमें गलत क्या बताया, वही उसका हदीस सुनाता है उसने वो। कहा, ये सवाल आपने बड़ा अच्छा किया है कि उसने गलत किया, हाँ। ये बात है, ये अब मुझे अब खुशी हुई है कि अब आपने मुझे क्या पूछा है कि उसने गलत क्या बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसने गलत क्या बताया है और आपसे अभी सवाल बताओ। करता हूँ। ये पहले वीडियो आप हाँ, सुनिए और वीडियो सुनिए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा, ठीक है जी। ये सुने, मुश्किल नहीं, बताओ ना। अजकुल भाई माइक म्यूट करें इनका। माइक म्यूट करें। ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। अच्छा एक मिनट, माइक ओपन करना, एक मिनट, तनवीर साहब का माइक ओपन करना जरा। तनवीर साहब, वीडियो सुनाने से पहले एक चीज पूछनी है आपसे। हेलो तनवीर साहब, माइक ओपन करना, आपका माइक म्यूट है। हेलो, वो भाई दौड़ी तो नहीं गया किधर, गश है। चलो बताओ। हाँ हेलो, आप बाहर के किसी मुल्क में रहते हैं? हाँ, मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूँ। सऊदी अरेबिया में, अच्छा माशाल्लाह। आल औलाद भी साथ ले गए हैं, यानी फैमिली? नहीं फैमिली नहीं, अलग है। अच्छा वो फैमिली इधर ही है, शादीशुदा ही है ना आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह सेहत अता फरमाए। बच्चे भी हैं? बच्चे भी है। अल्लाह सेहत अता फरमाए। बच्चे कितने हैं? एक बेटा बेटी? बेटी बेटी, माशाल्लाह मेरी बेटी है, वो भी मेरी बेटी है। कितनी उम्र होगी है उसकी? वो छोटी है अभी, 4-5 कितनी? साल। तकरीबन 5 साल की, ठीक। 5 साल। अच्छा वो ना, ये वीडियो जरा सुन ले। जब 10 साल की होगी ना तो उसको आपने सेक्स सिखाना है, सेक्स लाजमी सिखाइएगा, जरूरी है। ये जरा वीडियो नहीं वे गलत बोल रहे हैं। सुने, दो वीडियो, पूरा वीडियो सुना करो, दो वीडियो आधा सुन। नहीं, आधा नहीं। वीडियो सुन ले, पहले वीडियो सुन। हाँ। सुन ले। मैं सुना हुआ है, वीडियो सुना हुआ है, वो किस बात पे बोला है वो भी मैं सुना हुआ है भैया। इसमें गलत मतलब मत निकालो। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट। ये देख रहे हैं, आप कह रहे थे कि तुम गलत बात, मैं नहीं कह रहा, वो इंजीनियर साहब फरमा रहे हैं। कह रहे 10 साल के हो तो फौरी पूरा educate वीडियो करें। सुना, वो आगे भी सुनाओ, आगे भी दोबारा सुनाओ। सुनो। उसने पहले क्या सुन ले, बोला फिर है। आपने कहना जी मौलवी गाली दे रहे हैं, मैं नहीं कुछ कह रहा। वो कह रहे हैं कि भाई बेटी जब 10 साल की हो जाए तो फौरी सेक्स सिखा रहे हैं। बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप वो देखे ना, हाँ। ऐसे ही बाद में ये हो कि उनके खून के कपड़े भर जाए तो वो बाद में इसमें गलत है। गलत क्या है इसमें? अच्छा, गलत आगे- क्या आगे है? वीडियो आगे है। उसने क्या कहा है मालूम है? इसका मैं वाज़ेह कर दूं, वो वाज़ेह कर सही दूं। कह रहा है वो। तो जब बेटी आपकी माशाल्लाह 5 साल की है, 5 साल के बाद उसको फौरी सेक्स सिखाना है। 10 साल जब होगी तो माँ बाप उसको तालीम देगा, तभी तो वो बचेगा अच्छा वो आगे आप जाके। यही तालीम इसका देंगे कि कहना है। आपकी उसमें गलत क्या है? जोजा तालीम देगी? वही पेरेंट तालीम देंगे ना। नहीं, वो आप यही बोल दोनों रहे दोनों हैं, मिलके पेरेंट अपनी लाजिम तालीम बेटी दे दो, को नहीं तो सेक्स आगे जाके सिखाएंगे। शर्मिंदगी होगा। दोनों मिलके ही अपनी बेटी को सेक्स सेक्स सिखाएंगे के आप। बाद नहीं बोला है वो जो माहवार आते हैं वो बोल रहे हैं। वो टाइम पे बताओ, उसको सिखाओ, तभी तो नहीं होगा नहीं कुछ। वो नहीं, ओहो नहीं, वो नहीं। आगे फिर वीडियो सुनने, आपने वीडियो सुनी को नहीं? वो कह रहा है कि साथ उसके बैग के अंदर 2 पैड भी डालने हैं। ये सुने, रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले एजुकेट कर देंगे अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। परेशान नहीं होना। साथ के भी बताना है, हाँ। 2 पैड हाँ। उनके बैग के अंदर रख के उनको कहना परेशान नहीं होना। हाँ, ठीक है, ठीक है। उसमें गलत बात है। कोई बात पॉजिटिव जहन रखो नहीं, भैया, आप समझते हैं ना कि बोला सही उसने। बात है, सही हाँ। बात है ना, सही बात है। सही तो बात है, ठीक हो जी, सही बात है। आगे जरा सुनिए, आगे जरा सुनिए।
बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा होता तो कितना तमाशा लगा था, और फिर वो अपनी सहेलियों वो तमाशा ऐसे लगेगा बाहर, तो तमाशा नहीं लगवाना, ये सही बात है ना? नहीं ये तो सही नहीं है, किससे सही हो गया, क्या बोल ये रहे सही हैं, समझ नहीं आया मेरे को। अच्छा समझ नहीं आया, आ जाती है थोड़ा सा आगे आगे सुनाओ, आगे सुनाओ। आगे का भी सुनाएंगे, फलानी के साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और ऐसा तमाशा वो आके बताएगी कि फलानी के साथ भी हुआ, फलानी के साथ भी हुआ, फिर होना शुरू कर दे कि पूरा दिन वो है कम नहीं। मतलब माहवारी सही हुआ बात है ये ना ये? बोलेगा ना, माहवारी हुआ है ये बोलेगा। नहीं माहवारी नहीं, ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਡ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡ ਨਾ ਪਾਏ ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। नहीं इस बात नहीं। हाँ, नहीं आप ना फिर ऐसा ही है कि अभी से जोड़ने शुरू कर दें, जैसे वो लड़की का जहेज नहीं जोड़ते, तो अभी से 5 साल पहले ही ना आपको वो खरीदने ये शुरू क्या कर बात कर रहे हैं दें। भैया? हाँ, 2 क्योंकि देने पड़ेंगे, तो वो जब तक नहीं ऐसी बात आगे नहीं। सुनिए, आगे इसका वीडियो बनाने का मतलब क्या है मालूम है? अब इंजीनियर ना अपनी बेटी रज्जो के बारे में बता रहा है कुछ, सुनिएगा, नेड़े होके सुनिएगा। मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके गुजार मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची पूरी दिन रोती रहती है, उनको तो पता और ना बाद में हमें पूरा दिन रोएगी आपकी बेटी। हेलो हाँ रणवीर साहब, गलत बात नहीं है, गलत बात नहीं है, नहीं अच्छी ये गलत बात, बात हमने नहीं है। रुलाना नहीं है, रुलाना और घबराना भी नहीं। बात सुनो, बात सुनो, आगे वीडियो अभी बात है, सुनो। अगर आप कहते हैं तो मैं चला देता पॉजिटिव रखो जहन, हूं। नहीं पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव जहन रखो। मेरा ये क्या बिल्कुल तालीम दे रहे हैं? सही तो ओ भाई तालीम वो बोल बेटी रहे हैं आपकी, यार मेरा आगे मुश्किलात आपकी होने बेटी से या पहले। तुम्हें कोई लेना देना ही कौन, पॉजिटिव ही थे मैंने, मेरा कौन सा अल्लाह माफ करे। तो वही तो उसमें गलत नहीं बोल रहे, उसने बोला माहवारी आने से पहले इसको तालीम दे दो, तालीम दे दो, ये बोला है। इस वीडियो के ऊपर हाँ। बाद में करते हैं, सुन लिया। पता ही नहीं। हाँ, तो यही मामला बताओ। हो गया, तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ, फिर मिसों ने भी कहा कि आप अंडरवेयर भी, और नाल अंडरवेयर भी 10 साल तो पहले अंडरवेयर भी खरीद के रख लिया। हेलो नहीं ऐसी बात नहीं भैया, कोई ऐसी क्यों नहीं, और वो डिग पैना जब वीडियो बनाता है ना, और 2 ਜਿਹੜੇ ਦੇਣੇ ਜੇ ਪੈਂਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਗ ਪੈਣੇ ਨੇ ਅੰਡਰਵੇयर ਤੋਂ ਬਗੈਰ। वीडियो जब बनाया, ये वीडियो नहीं क्यों आप कह बनाया रहे इसका मालूम अंडरवेयर पता नहीं, है? ऐसी कोई बात नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है। वो उसके जो अंडरवेयर है, ये पैड सब होंगे वो है, कैसे सब रखेगी, वो तो है, गिर ये जाएंगे, बात है। वो तो गिर जाएंगे, वो थल्ले डेग जाने ने। कैसे गिर जाएगा? फिर इंज करो, कोई ना कोई धागा अबे धुगा दे यार। हाथ रस्सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ले। बात सुनो, बात पहले सुनो। ये वीडियो क्यों बनाई है मालूम है? नहीं वो इसलिए बनाई है सेक्स क्यों सिखाने के बनाई लिए, है? इसलिए वो बनाई है। आप लोगों को सेक्स सिखाने सेक्स के लिए नहीं, बनाई है। बिल्कुल भी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। सेक्स वो सिखाने भाई नहीं उसका है, वीडियो का ये नाम है इस्लाम में अवेयर सेक्स, करने के लिए। वीडियो का नाम ही ये इस्लाम में सेक्स। वो अपनी बेटी रज्जो के बारे में वो बता रहा है, है लेकिन कि भाई वीडियो में उसको फिर सुना, मैं सुना है ना पैड वीडियो भी सुना। लगाए थे, फिर अंडरवेयर भी पहनवाया था, मिसों ने अंडरवेयर पहनवाया था। अब ये सब क्यों कहा है कि ये मुझे बच्चे क्या को पता, जो ये है तो आगे बात जाके बताएंगे परेशानी ना हो, क्योंकि इस्लाम में जो फॉलो है आप कर रहे हैं, माँ मैं तो को, नहीं कर रहा। पेरेंट को ये सब तालीम देना चाहिए। तालीम देना जिस तरह चाहिए, नमाज आपने की देना, तालीम मैं देते तो हैं, कह इसका रहा भी हूँ। तालीम देना चाहिए। तो 10 साल तो ये बोला है तक उसने। इंतजार कर लेंगे कि अभी से देनी है तालीम आपने अपनी बेटी को। नहीं 10 साल, माहवार 10 साल से पहले आता नहीं है तो क्या करेगा? 9 साल से आता है तो अच्छा तब 9 भी साल, देगा ना, तो 9 साल में देंगे ना तालीम उसको। लाजिम देना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके परेशानी होगा। स्कूल में अगर गीला हो गया फिर क्या करेगा? हाँ, तो ये देना पड़ेगा, पेट लाजमी बात है। देना पड़ना है। हाँ तो देना पड़ना है। इसमें क्या गलत है? तो वो साथ पैड कितने देंगे? एक हाँ। पैड। मुझे पता है, 1 के 2 के 3। मिर्जा साहब कभी गलत नहीं बोलेगा, नहीं वो बिल्कुल गलत पॉजिटिव नहीं सोच बोलते। रखते हैं, अच्छा कितने मतलब दे रहे हैं बस। पैड, कितने देंगे आप अपनी बेटी को? क्या पेट देंगे मतलब क्या है? वो क्या उसने कहना तो कहा चाह कि रहे हैं? 2 पैड, 1 या 2। आप अब क्या फरमा रहे हैं? 1 या पैर 2? नहीं बोला है, पेट बोला है, पेट पेट बोला है, पैर नहीं, पैर नहीं, पेट पैड। बोला, पेट हाँ नहीं पैर नहीं, पैर थे हाँ। वो बाचू वो बाचू दे दम हाँ। वो पैड की बात, पैड। अच्छा पैड 1 देंगे कि आप 2?
जितना उसको आता है उस हिसाब से माँ देख के देगा ना। हाँ, इसमें क्या गलत गलत क्या है मेरे को ये बताओ। जी नहीं, पेरेंट जो है, माँ जो है, उसे देखेंगे, देखने के बाद उसका कब क्या होता है देख के देगा, हाँ, लाजमी देख बात के है। देगा, सही है। हाँ बड़ी तो बड़ी अच्छी ये तालीम आपने ली है इंजीनियर साहब से, ठीक हो, ठीक बात। नहीं, इंजीनियर से नहीं ली है ये बात नहीं। इंजीनियर से नहीं ली लेकिन ये ये एक ये जहन में खुद आप भी बोलो, पॉजिटिव सोच हो, ऐसा होगा नहीं। परेशान होने से positive पहले सोचिए। उसको एजुकेट करे, तो भाई ये एजुकेट सारे करो तो पॉजिटिव अच्छी सोचो बात भाई, है। पॉजिटिव सोचो भाई। अच्छा ये वीडियो आगे चला गलत लूं क्यों मैं, अगर सोचो? आप इजाजत देते हैं तो आगे कुछ और भी उसने कहा है। क्या वीडियो? कुछ भी नहीं है ऐसा, उल्टा सीधा वो नहीं बोलता है। नहीं सीधा बोल रहा है, मैं कब कह रहा हूँ ये उल्टा सीधा है, सीधा ही है। जी जी खाम चलो। खाम आप वो जब सही बात करते हैं खाम खा उसके पीछे पड़ा हुआ है तुम। सही हो गया, अच्छी बात। अगली आगे सुनाऊं वीडियो? क्या वीडियो में खुद देखा हुआ है और नहीं, क्या सुनाने की क्या वीडियो देखा जरूरत हुआ है? है। मैं खुद अच्छा सुना चले हुआ है, आगे देखा हुआ है। आपने खुद ही मुझे रोक दिया है। यहाँ तक जितनी बातें हैं वो कुरान की एक एक आयत देते जाएं और एक एक हदीस देते जाएं। कहाँ पे अब लिखा? ये बताएं, कहाँ शुरू ये क्या हो गया? हम्म? इसमें कुरान के क्या लेने देना उसमें? कुरान का ये कोई लेना दुनियावी देना नहीं। मामलात है, ये वो दुनियावी आप तो मामलात भी कह रहे थे है वो जो बात पेरेंट्स करता का। है कुरान और हदीस से करता है, कौन? आप कह रहे थे। दीगर बात नहीं, कुछ ऐसे कुरान हदीस से मामलात नहीं भी करता होते ये हैं बातें। जो हाँ कुरान क्या हदीस से लिखा नहीं हुआ है भैया? करता। कुरान हदीस से करने वाले अलग बात है, ये कुरान हदीस से क्या है वो? ये इस चीज का कुरान हदीस से कोई तल्लुक नहीं। नहीं, कुरान हदीस से कोई इसमें साबित करने वाली क्या है इसमें? अच्छा ये सिंपल बात है, जहन इंसान का जो है एजुकेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, यही बात है। इसमें सही होना है। चाहिए बोला तो फिर है मिर्जा आखिर जो में है। क्या फिर बस समझ आई है इसकी कोई बात समझ नहीं आई। अभी तो आप कह रहे थे कि कुरान और हदीस से वो बातें करता है, तो कोई कुरान हदीस सुनाई नहीं। फिर आपने देख लें वो कुरान हदीस उसने ये बताया है कि चलो ये जो इमादुल आप लोग इस्लाम चला ही बोलते गया हैं। है। इमादुल इस्लाम वापस आ यार, पूरे कुरान हदीस सुना दे। तुर्की है ना सकी महमूद खान साहब आए हैं। अस्सलाम कुरान वालेकुम। हदीस की बात। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि काशिफ अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। कादिम मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब भी आए हैं। जी जनाब, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस्लामुल्लाह साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामुल्लाह साहब अस्सलाम वालेकुम। इस्लामुल्लाह साहब का ना रोला ही रहना है। अच्छा चलो ठीक हो गया। तो बड़ी मेहरबानी जी आपका तनवीर साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। आपने बड़ा कुरान दी आज सिखाया है। तो चलो ये इमादुल इस्लाम आ गया, इससे पूछ लेते हैं। इसको कुरान दी बड़ा आता है। इमादुल इस्लाम साहब, हेलो इमादुल इस्लाम साहब, हेलो। सर मैं भी इनका फॉलोअर हूँ मिर्जा साहब का। ये जो बातें आप कर रहे हैं जी जी जनाब, इमादुल इस्लाम, इमादुल इस्लाम साहब, मैंने आपको इंतजार किया। ये इमादुल इस्लाम साहब, ये कुरान दी इसमें कहाँ पे लिखा हुआ है कि लड़की जब 10 साल की हो जाए तो उसको दो जो है ना वो पैड भी जी, लगाने क्या? हैं, 2 पैड लगाने हैं और साथ उसको अंडरवेयर भी पहनाना है, नहीं तो वो फिर ना रोला पाएगी तो रोएगी। कोई कुरान दी है वे किधरे? ਤੇ ਨਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ सेक्स सिखाओ। आप मुफ्ती हैं, भाई मुझे तो आज तक नहीं कहीं मैंने पढ़ा। आप मुफ्ती हैं, आप आलिम हैं, आपको नहीं पता? नहीं पता ना यार, इमाद मुझे पता होता तो मैं ये बंदों को हटा दें जरा। यार बताओ तो सही ना, ये कुरान हदीस की कोई एक कुरान की आयत और एक मैं हदीस, क्या एक आयत एक हदीस चल जाएगी, कोई मसला नहीं। मेरे भाई, मैं एक कुरान की आयत और एक बंदों को हदीस। हटा दें, मैं और आप मुनाजरा नहीं करें। नहीं बंदों को क्यों हटाना है तू? जी बताएं। यार वैसे ही बता दो ना यार, एक कुरान की आयत और एक हदीस। को नहीं लिखा हुआ, ना ही हदीस में लिखा हुआ है। अंजीर मिर्जा को छोड़े, दफा गए, मरजइयों को लानत भेजे। आप मुझसे डिबेट करें जनाब, आप क्यों रहे हैं?
ਯਾਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਪਾਓ ਲਾਨਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਲਾਨਤ। बंदा नहीं को हटाएं, डिबेट ਯਾਰ ਇਮਾਦੁਲ ਇਸਲਾਮ, डिबेट करें। ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਲਾ ਮਜਰੂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਸੁਣਾ, ਡਿਬੇਟ ਕਰ, ਵੀਡੀਓ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਕਰੋ डिबेट। चलो डिबेट तुम्हारे साथ ना काशिफ मैं करता इसको है, मानता ही नहीं हूँ ना, मैं इसकी काशिफ करेगा डिबेट, काशिफ करेगा, काशिफ करो भाई डिबेट इससे। अच्छा फिर काशिफ को ले, फिर सबको साइड पे कर दें, फिर ऐसे डिस्टर्बेंस होती है। काशिफ डिबेट कर ले, काशिफ मौजूद हो, सबको आप फिर फिलहाल म्यूट कर दें। फिर काशिफ मौजूद हो, काशिफ लगता है मतलब मौजूद हूँ, इधर ही हूँ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। उस्ताद जी मैं बोल रहा, मैं वो उधरों डिस्ट्रैक्ट कर रहा था वो टिकटॉक। ਚਲੋ ਕਰੋ डिबेट, ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। चले जी, बाकी को आप फिर म्यूट कर दें, हटा दें, स्क्रीन में काशिफ चौधरी को कर दें और मुझे कर दें, ताकि हम डिबेट कर लें इल्मी। भाई इल्मी डिबेट ही हो रही है, ये कोई नहीं बीच में बोल रहा, सब म्यूट है, चलो आप बात करो। नहीं, मैं कह रहा हूँ काशिफ को लाए ना, और मुझे आप स्क्रीन पे कर दें, फिलहाल आप सारे साइड पर हो जाएं। यार तुम्हें ना वैसे ही बड़ा बनने का ना बड़ा शौक है, पहले तेरा ये भी शौक पूरा कर देता हूँ, चल फिर ना कहें कि भाई चलो अब करो बात तुम लोग, मैं बीच में साइड पे हो गया, ये लो। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। भाई काशिफ साहब ने, मुफ्ती साहब ने चुना 2 मिनट गुफ्तगू काशिफ चौधरी साहब करेंगे, 2 मिनट मैं करूंगा, तो 2 मिनट कुछ काशिफ भाई बात करके 2 मिनट मैं बात करूंगा। और काशिफ चौधरी साहब से गुजारिश है कि मुझे बता दें कि आपके बरेलवी मौलाना रज़ा खान साहब ने लिखा है कि गौस मुश्किल कुशा की विलायत का एक दर्जा है। अल्हम्दुलिल्लाह इरशाद है कि बगैर गौस के जमीन आसमान कायम नहीं रह सकती है। इसका कुरान की आयत से मुझे बता दें हवाला, या सही हदीस से हवाला दिखा दें, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं बेशक मैं ही अल्लाह हूँ जिसने जमीन आसमान को थाम रखा है और अपनी जगह है, और वो हिल भी, यानी कि वो अगर वो टल जाए तो फिर अल्लाह जल्ल जलालुहु के सिवा कौन है, कोई एक भी ऐसा नहीं है कि उसको थाम सके, बेशक वो बर्दाश्त करने वाला, माफ करने वाला। सूरह फातिर में आयत नंबर जो है 41 में है। तो काशिफ चौधरी साहब इसका जवाब दे दें कुरान की आयत से कि ये कौन सी कुरान की आयत में ये बात लिखी हुई है या सही हदीस में लिखी हुई है, जरा ये बता दें। जज़ाकल्लाह खैरा। 2 मिनट आप बात करें, 2 मिनट मैं बात करूं। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तमाम मुसलमानों को। और आज के हमारे प्रोग्राम के मेजबान जो हैं वो इमादुल इस्लाम साहब हैं। बहुत शुक्रिया इमादुल इस्लाम साहब, आपने इनवाइट किया अपने चैनल के ऊपर, क्योंकि आपने जो है वो खुद ही बोल के खुद ही गुफ्तगू शुरू कर ली, तो मुझे यही समझा मैं कि शायद मैं आपके चैनल पे आया हूँ और आपने जो है खुद ही, चले मेहमान होने का आपने ये फायदा उठाया। मुझे ये बताइए कि मिर्जा जूनियर की जो एकेडमी है वो सेक्स की तालीम का मरकज कैसे बनी? आप चूंकि वहां आते जाते रहे हैं, और मजे की बात, ये कुदरती बात है, मैंने आज आपकी सारी वीडियोस निकाली जो मेरे पास लैपटॉप में सेव थी, जिनको आप प्राइवेट कर चुके हैं, जिनको आप मिटा चुके हैं यूट्यूब की दुनिया से। लेकिन काशिफ चौधरी उस वक्त भी जाग रहा था, काशिफ चौधरी अब भी जाग रहा है, खत्म नबूवत पर पहरा देगा। वो वीडियोस आपकी निकालनी है जिसमें आपने ये कहा कि मिर्जा जूनियर के से जब मैंने इनकारी हुआ तो मेरे घर उसने पुलिस वाले भेजे, मेरे माँ बाप को धमकाया। वो वीडियो मेरे पास मौजूद है जनाब अली, मैंने ऑनलाइन भी कर ली है। जैसे ही आप पटरी से उतरेंगे वो वीडियो फौरन ऑन एयर कर दी जाएगी। अच्छा, अब मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब ये दीजिएगा कि मिर्जा जूनियर की एकेडमी जो है वो सेक्स की तालीम का मरकज कैसे बनी, क्यों बनी और कब से है? जी, आपका 1 मिनट अभी रहता था, आपने बात मुकम्मल कर ली। 2 मिनट मैं बात करूंगा, 2 मिनट आपने बात करनी है। और दूसरी बात है, मुफ्ती मुबशर शाह साहब ने आपको अपना नुमाइंदा चुना है, मैंने नहीं चुना।
تو کیونکہ ابھی ویڈیو میں سب کے سامنے نے کہا ہے کہ کاشف چودھری کرے گا مناظرہ آپ سے. اچھا بات یہ ہے کہ جناب والا جہاں تک انجینئر مرزا علی کی بات ہے جس کو آپ جونیئر مرزا کہہ رہے ہو تو واقعی میں اس کو اس پر اور اس کے افکار پر اس کی تعلیمات پر لعنت بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے یہ سن لیں آپ غور سے. اور انجینئر مرزا کی ہر بات پر کو میں لعنت بھیجتا ہوں. میں تو اس پر بات کروں گا جو قرآن و صحیح حدیث میں ہے. مجھے جناب والا یہ بتا دیں اور جو آپ نے کہا نا وہ تھریٹ والی بات ماں باپ بالکل ہوا تھا معاملہ. مجھے آپ یہ بتا دیں آپ کے بزرگوں نے کہانی کرائی ہے کاشف چودھری بھائی کہ وہ لکھتے ہیں کہ یہ آپ نے بات جواب دینا آپ نے کہ ہر زمانہ میں غوث ہوتا ہے بغیر غوث کے زمین آسمان قائم نہیں رہ سکتی ہے. مولانا احمد رضا خان صاحب نے یہ بات فرمائی ہے اپنے ملفوظات میں. تو اس پہ قرآن کی آیت مجھے دیں صحیح حدیث دیں کیونکہ آپ کے بزرگوں نے یہ کہانی کرائی ہے اور یہ بہت بڑی کہانی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم. اگر آپ کے بزرگوں نے یہ کہانی کرا کے بہت بڑا شرک کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے 2 منٹ آپ کے پورے ہو گئے 2 منٹ پورے ہو گئے آپ کے. اب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ مرزا جونیئر کی جو اکیڈمی ہے اس میں ایکس تعلیم کا مرکز کیوں بنا؟ میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. ویڈیو ذرا سن لیں ٹھیک ہے ویڈیو سن لیں. میں شاید کوئی ایسی باتیں کروں جو بھی مذہبی لوگوں کو بری بھی لگے. دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے. سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں. ہمارے 14-15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں. ہوتا کیا ہے یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا. وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے. بچوں کے بیگ کے اندر آپ رومال یا اس طریقے سے اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے پیڈز آ گئے اور ان کے پیڈز ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا. ساری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوتا تو کتنا تماشا لگا تھا اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. اور لڑکے بھی اسی طریقے سے. میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا آج اس کے ساتھ ہو گیا. تو وہ بچی پورے دن روتی رہتی ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے. تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ سلسلہ. پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں. سیکس کی تعلیم اس ایج کے بعد تو دینی ہے نا آپ نے. جی اماد الاسلام بھائی کاشف بھائی کا ٹائم ختم ہوا. جواب دیں اس ویڈیو کا. جی جناب اب میں بات کروں گا کہ میں نے ابھی پہلے بھی کہہ دیا انجینئر مرزا کی میں تعلیمات پر افکار نظریات پر لعنت بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے کل آپ کے مرید اور آپ کے چیلے چماٹے کہہ رہے تھے کہ جی کہ وہ لعنت بھیجتا. میں تو لعنت کر رہا ہوں. اور بھائی مجھے جواب دو کاشف چودھری اور مفتی مبشر شاہ صاحب کہ آپ کے بابوں نے لکھا ہے کہ بغیر غوث کے زمین آسمان قائم نہیں رہ سکتا. قرآن کی آیت دیں صحیح حدیث دیں اجماع امت قیاس شرعی دلائل دیں جناب. نسرین علی گلا نہ کرو انجینئر مرزا کو جی اس نے یہ بات کی یہ اس سے جا کے پوچھو. میں اس کو جب کہ مان نہیں رہا الٹا میں تو لعنت کر رہا ہوں. پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ انجینئر مرزا نے وچ واڑ دے پہ میرے تو میں تو لینا دینا ہی نہیں ہے. میں تو اس کی صحیح حدیث ہے. میں تو چلو ٹائم ختم ہوا. اب یہ نا ٹائم ختم ہوا. جی آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. کاشف چودھری بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو کے اندر جو وہ کہہ رہا ہے کہ 10 سال کی لڑکی ہو جائے تو اس کو تعلیم سکھانی ہے سیکس کی تو وہ پھر آپ نے اپنی باجی کو سکھائی ہے کہ نہیں؟ یہ ویڈیو سن لیں. میں شاید کوئی ایسی باتیں کروں جو بھی مذہبی لوگوں کو بری بھی لگے. دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے. سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں. ہمارے 14-15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں. ہوتا کیا ہے
یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں، اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا، وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے. بچوں کے بیگ کے اندر آپ رومال یا اس طریقے سے، اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے، پیڈز آ گئے، اور ان کے پیڈز، ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں کے، اور ان کو پہلے ایجوکیٹ کر دیں کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پریشان نہیں ہونا. ساری بچیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے کہ جب ان کے ساتھ پہلی دفعہ ہوتا تو کتنا تماشا لگا تھا، اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کا بھی سنائیں گی فلانی کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اور ایسا تماشا کھڑا ہو جاتا ہے. اور لڑکے بھی اسی طریقے سے. میری ماشاءاللہ بڑی بچی آلموسٹ 12 سال 13 سال کی، تو میری وائف نے اس کو اس حوالے سے ایجوکیٹ، کیونکہ وہ مطلب وہ آ کے ظاہر مجھ سے تو نہیں ڈسکس کرتی، تو اس نے اپنی ماما سے ڈسکس کیا کہ آج اس طرح ایک بچی کے ساتھ ہو گیا، آج اس کے ساتھ ہو گیا. تو وہ بچی پورے پورے دن روتی رہتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہ معاملات ہو گئے. تو وہ پھر اس نے اس کو ایجوکیٹ سارا کچھ سلسلہ. پھر مسوں نے بھی کہا جی آپ مطلب انڈر ویئر یوز کریں. جی یہ ٹائم ختم ہونے لگا ہے، تو یہ کاشف بھائی پوچھ رہے ہیں کہ وہ جیسے مرزا جونیئر جیلمی نے اپنی کڑی رجو کو انڈر ویئر پہنوایا تھا، تو اس کی چونکہ جب وہ شلوار گیلی ہو گئی تھی، خون سے بھر گئی تھی، تو وہ آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں. کاشف بھائی جواب دیں. جی جناب، میں نے پھر کہہ دی ہے کہ میں جنہیں مرزا کی تعلیمات کو نہیں مانتا. جناب جواب دیں، بغیر غوث کے زمین آسمان قائم رہ سکتی ہے؟ یا جواب نہیں ہے تو مجھے بتا دیں کہ ہمارے پاس قرآن کی آیت نہیں ہے. کل بھی آپ مناظرہ آ رہے تھے اور آج بھی آپ مناظرہ آ رہے ہیں. اللہ کے فضل سے آپ لوگوں کے پاس کہانیاں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. بات میں انجینئر مرزا کی بات ہے، میں تو اس کے پر لعنت بھیج رہا ہوں، اس کی تعلیمات پر. میں تو قرآن سے بات کر رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے بات کر رہا ہوں. اجماع امت قیاس شرعی اے نسونا دوئے چاچا پتریا تے ہن جناب جواب دیو. اے ڈرامے بازی ختم کرو تو جواب دیو. اے کیڑے بزرگ قرآن دی کیڑی آیت وچ لکھی ہے کہ بغیر غوث کے زمین آسمان قائم نہیں رہ سکتی؟ کون سی صحیح حدیث میں لکھی ہوئی یہ باتیں؟ یار آپ لوگوں نے کہانی کرائی ہوئی ہے عوام کے ساتھ. انجینئر مرزا نے یہ سیکس کی تعلیم چلے ٹائم ختم ہوا. اماد الاسلام ٹائم ختم ہوا. کاشف بھائی پوچھ رہے ہیں کہ تم نے ابھی تک اس ویڈیو کا جواب کو نہیں دیا. میں شاید کوئی ایسی باتیں کروں جو بھی مذہبی لوگوں کو بری بھی لگے. دیکھیں اسلام یہ جو کہتے ہیں نا جی سیکس کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے، سر اسلام میں تو سیکس کی ایجوکیشن ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 2 یا 3 سال کے بچے کو سیکس سکھانا شروع کر دیں. ہمارے 14-15 سال کے بچے کیا سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں؟ یعنی بچیوں کو تو 10 سال کی ہو جائیں تو فوراً ایجوکیٹ کریں. ہوتا کیا ہے، یہ بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں، اسکول میں پیریڈز آ جاتے ہیں تو بچی تو پریشان ہو جاتی ہے نا، وہ پورے کپڑے بھر جاتے ہیں خون سے. بچوں کے بیگ کے اندر آپ رومال یا اس طریقے سے، اب تو خیر لیٹسٹ معاملات ہو گئے، پیڈز آ گئے، اور ان کے پیڈز، ان کے 1 یا 2 پیڈ رکھ کے بچیوں. جی یہ ٹائم ختم ہونے لگا ہے، تو کاشف بھائی پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کی یا بہن کی بیگ کے اندر 1 یا 2 پیڈ اور رومال وغیرہ ڈالا تھا کہ نہیں ڈالا تھا، تاکہ وہ جو ہے نا شلوار جو ہے نا وہ گیلی ہونے سے بچ جائے. تو جواب ابھی تک کو نہیں دیا. چلیں ٹائم ختم ہوا. جی جناب 1 منٹ پر بات ہے. چلو ٹھیک ہے. بات یہ کہ کاشف صاحب نے میرا شاہ صاحب دی تھی نال یا شاہ صاحب دی بیوی نال سوال کیتا ہونا ہے، مبشر شاہ یا مبشر شاہ نے دائرے میں اخلاق کے دائرے میں، اخلاق کے دائرے میں، ورنہ میں تمہاری وہ پرانی ویڈیو لگا کے یا تمہاری کتی نہلا دوں گا. جو تم نے اپنی بیوی کے بریزیر پیش کیے تھے نا یہاں پہ آن لائن، جب پولیس والے تمہارے گھر پہ بھیجے تھے، جب مرزا جیلمی نے پولیس والے تمہارے گھر پہ بھیجے تھے تو تمہاری ٹٹی کیوں نکل گئی تھی؟ مجھے یہ بتاؤ. نہ بھاگنا نہیں ہے. کاشف چودھری بھاگنے نہیں دے گا. نہ مجھے بتاؤ، جب مرزا جونیئر نے پولیس والے تمہارے گھر بھیجے تھے تو تم نے اپنی وائف کو آگے کیوں کیا تھا، کیوں پیش کی تھی؟ بتاؤ آج لوگوں کو یہ بتاؤ، عوام کو یہ بتاؤ تم نے کیوں پیش کی تھی. تمیز کے دائرے میں رہو ملا، بتاؤ عوام کو تم نے کیوں پیش کی تھی. جب مرزا جونیئر نے پولیس والے تمہارے گھر بھیجے تھے تم نے اپنی بیوی کیوں پیش کی تھی پولیس والوں کے آگے؟ بتاؤ، یا مجھے اجازت دو میں تمہاری وہ ریکارڈنگ یہاں چلاؤں جس میں تمہارے پپا کا پیشاب نکل گیا تھا پولیس والوں کو دیکھ کے. بلاؤ اپنے باپ کو، اپنے پپا کو بلاؤ سامنے،
देखेंगे हम पुलिस वालों को देख के कैसे निकला था उस्ताद, बताओ जरा। इसलिए तमीज के दायरे में मुफ्ती साहब के साथ गलत बात करोगे ना तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो सारी बातें छोड़ दो सारी बातें, मुझे ये बताओ कि मिर्जा जूनियर जिल्मी पे लानत क्यों नहीं करते, उसके अकायद में क्यों लानत करते हो? मिर्जा जेलवी ने तो बम्बू जो चढ़ा अदालत में हमारा बंदा भी मौजूद था, उसने बताया कि तुम्हारे बूथे पे जरा भी रौनक नहीं थी, और अगर मिर्जा जेलवी जरा सा फ्राइचर और देता तुमने वहां रोना शुरू कर देना था, गिड़गिड़ा कर माफी मांगनी थी। बताओ लोगों को कि अदालत में तुम्हारे साथ क्या हुआ, इमादुल शैतान बताओ। अब बनकी हो गई इमादुल शैतान, बनकी हो गई कुछ लोग जो लोग देखना चाहते हैं कि इमादुल शैतान की इस वक्त क्या सूरत हाल है, वो लोग यूट्यूब पर आए, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, यूट्यूब पे आकर 1 मिनट के लिए देखें, इमादुल शैतान रोने वाला हो चुका है और बोलती उसकी बंद हो चुकी है। इमादुल शैतान बताओ, ये देखिए अवामुल नास को बड़ी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, बड़ी स्क्रीन पर। बेशर्मी वाली हंसी। सही बात है, बेशर्मी वाली हंसी, बेशक। हाँ, तुम्हारी ये देखो, कह रहा मेरी आंख में शर्म वाला पानी नहीं है, लो सुन लो। इस्लामुल्लाह भाई ये क्या कह रहा है अपनी आंखों की तरफ इशारा करके? मैं बता रहा हूँ क्या बोल रहा है। हाँ तुम बता दो। अपनी आंखों के इशारे करके हमको बुला रहा है। भाई हमारा टेस्ट इतना खराब नहीं है, किसी और को पेश कर, तू पहले भी पेश कर चुका है, 5,000 रुपये मांगता फिरता है लोगों से। हाँ, ये 5,000 वाली क्या गेम है डॉक्टर, ये 5,000 वाली क्या गेम है? आज से 2.5 साल पहले झंडे ने मुझसे पैसे मांगे 5,000 रुपये, मांगे ना तुमने 5,000? फौरन चैनल के ऊपर आकर ये मसलक के ऊपर बातें शुरू कर देता है, जबकि इसको पता भी है कि इस्लामुल्लाह भाई अगर जैसे किसी को मुनाफिक की शक्ल देखनी है, किसी को जीता जागता मुनाफिक देखना हो ना, इस्लामुल्लाह भाई मिर्जा के मिर्जों के ये हमारे चैनल इस्लामुल्लाह भाई। चलो यार डॉक्टर साहब, इस्लामुल्लाह भाई 1 मिनट रुके, साथी कुछ कहना चाह रहे हैं। इस्लामुल्लाह भाई अगर किसी को मुनाफिक यार डॉक्टर 1 मिनट ना यार, मेहमानों की गुफ्तगू भी सुन लेते हैं ना यार। ये बोले भाई, नाम भाई क्या हाल है, ठीक हो? आप बात करें वो सुन रहा है। यार मुझे किसी ने बताया है कि यार आपकी राइट साइड पे काला निशान है, सच है ये? ओल है उस्ताद, ओल है। इमादुल इस्लाम ये बताओ कि पुलिस वालों ने तुम्हें मार के तुम्हारा बूथा, तुम्हारा चेहरा सजा दिया था। सजा दिया बोलते हैं, सुजा दिया बोलते हैं यार। ये काले निशान का सुझा दिया था, मुंह सुझा दिया था। इनके राइट साइड पे काला निशान है। अच्छा, राइट साइड पे काला निशान है भाई, कहाँ पे है निशान भाई? हेलो 1 2 3 हेलो। वो काला निशान है ना, वो दोनों कवलों के बीच में है। भाई आपको कैसे पता चला यार? ये तो सिर्फ मुझे पता था। निशान तुझे आंखें मार रहा है निशान तुझे आंखें मार रहा है। मैं ले भी लूंगा, टेंशन मत ले यार। ये बात आपको कैसे पता चली? ये तो सिर्फ मुझे पता थी। आप नए हो इसके लिए। इस्लाम भाई बहुत धोखेबाज हो। ये आपके लिए नया होगा, मेरे लिए मेरा बहुत पुराना है, ठीक है? अरे अच्छा, एक बार मजे की बात बताता हूँ जरा हट के। अगर किसी को इस दौर का मुनाफिक देखना हो ना, तो वो इमादुल शैतान को देख ले, ठीक है? ये वो शैतान है, देखो ये गवाह शाही के चैनल पे जाकर के वहां पर भी टिक करके अपनी टीआरपी बटोरा, ठीक है? मिर्जा जूनियर क्या गया वहां पर, अरे तू चुप चाटना, अबे तू चुप रहे, तू सिर्फ चुप। अब जवाब, तेरी औकात नहीं बोलने की,
तेरी औकात नहीं बोलने की, तू चोर इंसान है, तू चोर इंसान है, तू तू चुप। ये अपनी बहनों से धंधा करवाने वाला इंसान, होटलों को भेजने वाले इंसान तू, ठीक है, रेट लगा करके लोगों को बेचना, बगैर तू है, लानती तू है, बदतमीज तू है। अल्लाह का वास्ता है यार, ना खोलो इसको। मुबशर को दुनिया अपनी बीवी को आगे कर दे। से तू कितना बड़ा इल्मी है, तेरी पुरानी सारी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तेरी एक रिकॉर्डिंग है, अगर चला दूंगा ना नंगा हो जाएगा यहीं पर, नंगा हो जाएगा तू। एक मिनट आप तू 1 मिनट क्या, तू मेरे एल पे, समझा गया? वो तो मैं उस्ताद मोहतरम को ऐसे तुझसे तमीज से बात कर रहा था शैतान, वरना मैं तो तुझे कब तक जूते मार दिया होता। तेरी औकात है बात करने की? तू वो शैतान है जो हर जगह जाकर मुंह मारता है। अच्छा यार, ये हारून साहब आए हैं, इनसे बात कर लें। जी हारून साहब, हारून रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। जी जनाब। शाह साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कुत्ते की वो दुम है अमातुल इस्लाम के, जो जिसको आप आयत में भी डालें तो ये सीधी नहीं होगी, ठीक है? ये बहुत ही बगैरत आदमी है, मैंने इसे सुना है। 1 मिनट हो गया आप पुराने दौर से इसको सुना है। ओए इमातुल इस्लाम, अभी आप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ इमातुल इस्लाम। ये ऐसा बंदा है कि मिर्जे ने अपनी एकेडमी में जो ओरल सेक्स का प्रैक्टिकल किया था ना, वो इस पे किया था। ये इतना बगैरत है। ये वो ही बंदा है जिसने हमें बताया था कि जनाब मिर्जा जूनियर जेल में जब दर्स दे रहा होता है तो उसके दर्स कुरान के पीछे में कोंडम पकड़े जाते हैं। वो वीडियो अभी तक मेरे चैनल पर मौजूद है। ये वो ही बंदा है। तो यार मुफ्ती तो आप लगाते क्यों नहीं है यार, लगाए ना। कह रहा था पीछे कोंडम होते हैं और पीछे ओरल सेक्स कर रहे होते हैं, चूसा चूसैया कर रहे होते हैं। ये बंदा है, वो सामने बैठा हुआ है, और आज फिर उसकी गोद में जाके बैठ गए। मुफ्ती साहब मेहरबान करें, ये लगाए यार, सब लोगों को पता चले यार इसका। जी वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है जनाब, खत्म वो टाइम्स के ऊपर ही मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं। वो आप सर्च करें, इमातुल इस्लाम के साथ जितने मुनाजरे मेरे हुए हैं आप चेक करें, आपको मिल जाएगा साहब का के अंदर बड़ा कुछ मिलेगा। बगैरत आदमी। तो अब बताता क्यों नहीं है कि रोना शुरू क्यों कर दिया तूने? ये इस वीडियो का जवाब दे तू। वो कह रहा 10 साल की जब लड़की हो जाए तो उसको ओरल सेक्स सिखाना ही सिखाना है, सेक्स की एजुकेशन देनी है। होनी चाहिए सर, इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। 10 साल की कुड़ी हो जाए तुम्हारी तो फौरी एजुकेट करें। वो अभी एक और मरजई आया था टिकटॉक के ऊपर, वो तो कह रहा था कि जब मेरी कुड़ी 10 साल की होगी, अभी तो 5 साल की है, तो मैं उसको फौरी एजुकेट करूंगा। तुम लोग क्यों नहीं करते हो? उसने तुम लोगों की लड़कियों के बारे में बोला है। नाले 2 पैड ना ਉਹਦੇ बैग च रख के ना ਉਹਨੂੰ ਟੋਰਿਆ ਜੇ ਬਾਹਰ, ਐਵੇਂ कपड़े गिले ना हो जान किधरे। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स, उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले एजुकेट कर दे। पहले ही एजुकेट करना है भाई, पहले नहीं थे वो फिर स्कूलों ने एजुकेट किया ना, काम खराब हो जाना है। या कोई मौलवी टक्कर पिया ना, मौलवी जो कोई एजुकेट करेगा तो होर काम खराब हो जाना है। साहब बीच में बोल रहे हैं, अपना माइक म्यूट करें प्लीज, माइक मुकम्मल तौर पे म्यूट कर लें अपना, जो बीच में बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं यार? कौन भाई बोल रहे हैं? हेलो, किसी ने कोई बात करनी है? कौन बोल रही? हाँ जी, मेरे ख्याल में ये वो मिर्जा वाली आईडी जो है ना, ये वो जी मिर्जा वाली आईडी कौन है? बोले जी। ये जिशान सेठी साहब है। सर जी मैं कह रहा हूँ इस बगैरत की वीडियो ना लगाएं, शर्म आनी चाहिए इसको। जी जी शुक्रिया। बहरहाल ये इन लोगों को शर्म दिला रहे हैं, लेकिन इनको शर्म आती नहीं है भाई। तो बगैरत हो जाए उनको क्या शर्म भाई? इधर देखें, एक तरफ ये लोग कहते हैं जी वो बड़ी कुरान दी से बात करता है। भाई हमारा ये सवाल बनता है कि नहीं? जिशान भाई बताइए कि हम इनसे पूछे कि भाई ये जो बात कर रहे हैं कुरान और दी से साबित करो। इमादुल इस्लाम माइक भी तेरा ओपन है, आवाज तेरी आ नहीं रही की ड्रम है की हुंदा पिया? मैनू नहीं समझ आती पई।
ये लिपसिंग कर रहा है, ये लिपसिंग कर रहा है, लोगों को बता रहा है कि म्यूट किया हुआ है, लिपसिंग कर रहा है। अल्लाह दी कसम है मैं नहीं, ये माइक है वे ओपन है। आपकी वजह से एहतराम कर रहा हूँ, कसम खुदा की आपकी वजह से एहतराम कर रहा हूँ, वरना आज इसको इतने जूते मारता हूँ, इतने जूते मारता भी अपनी शक्ल भूल जाता। ये इतना बगैर इसलिए इतनी बेगैरती यकीन हुई है। ये लोगों से पैसे मांगता है, ये लोगों को कैप्चर करता है, चुप करके मुंह बंद करके बैठा रहे इमादुल इस्लाम, इमादुल शैतान। जवाब दें, जवाब दें। अरे मक्कार इंसान, कल परसों के दिन तूने जो जमीन आसमान क्या कर सकते हैं मुबश। अब तू ये बता, पहले तू ये बता कि तुमने 10 साल की अपनी बेटी को ओरल सेक्स सिखाया कि नहीं? 10 साल की अपनी बहन को तू चुप मुंह को चुप करके बैठे। किसने डिबेट करनी है मुझसे? तुझे डिबेट नहीं करनी है, तुझे ओरल सेक्स करवाना है मुझे, और मैं करवा के दूंगा। आसमान के जमीन अच्छा, ये अपने आप को बड़ा प्रोफेसर समझ रहा है जिशान, अपने आप को बड़ा प्रोफेसर समझ रहा है ये। यार एक मिनट ठहरना भाई, एक मिनट ठहर जाना भाई। एक की ना है तेरा आसफ ते उमर, इधर यूट्यूब पे आ जाओ भाई, यूट्यूब पे आ जाओ। यार ये मिर्जा एम वाली आईडी भाई अपनी वारी पर बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रही बात की। काशिफ तू मॉडरेटर है हमें ना? जवाब दे, मैंने एक मिनट गुफ्तगू कर ली, अब आप एक उस्ताद जी समझ नहीं आई आपकी बात की, बीच में बोली जा रहा है यार। एक ते बोलन नहीं देंदा पिया। हदीस से साबित करो कि 10 साल की बच्ची को ओरल सेक्स सिखाएगा ना कि नहीं सिखाना। मेरी बात पे जवाब दे काशिफ। मैं क्या मैं चला मैं थोड़ी देर वास्ते। जवाब दे। 3 दिन पहले तो सवाल किया तो हमने उसका जवाब दिया, अब तेरी बारी है जवाब देने की। अब तेरे नौकर बैठे हैं, तेरे गुलाम बैठे हैं, तुमको पैसे देता है कि तुम तेरी बात का जवाब दे। तू हमारी बात का जवाब देना, हर बार आके टिप्पणी शुरू कर देता है। काशिफ मैं आ रहा वहां ते संभाल लेगा, मैं आ रहा थोड़ी देर तक। जी उस्ताद जी, चलो सही है, चलो डिबेट कराओ यदि डॉक्टर निशान लगे ने बोल, मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर निशान ये क्या हो गया इसको, ये क्या हो गया? किसी अच्छा उस्ताद मोहतरम, लाइव मुझे बंद करनी पड़ेगी, मुझे एक काम करना है। वो ये क्या किया डॉक्टर? मजा आ गई, इसको मजा आ गई। अच्छा सुनो ना, इसमें ईमानदारी से बताओ, इसमें 3 दिन पहले जो पिछले रसूलुल्लाह की बात कही थी वो हमने झूठी साबित की थी। अब इसके ऊपर बनता है कि अब ये हमारी बात का जवाब दी ना, पिछले रसूलुल्लाह वाली बात तो झूठी साबित हुई ना, अब इसको जवाब देना पड़ेगा। अब इससे जवाब दे। अच्छा ये जो आज ये कह रहा है ना डॉक्टर निशान, पुरानी स्क्रीन देख जाके, पुरानी स्क्रीन डॉक्टर निशान, तेरे बाप का नौकर नहीं हूं मैं, समझा? निशान ये जो इससे तमीज से बात नहीं करूंगा मैं, 2 मिनट रुक। तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, तूने अपनी बहन मुझे निकाह, मेरे निकाह में तूने अपनी बहन नहीं दी है, समझा क्या? मैं तेरा जीजा लगता हूँ, तेरी हर बात का जवाब दूं मैं, एक बार जवाब दे दिया बात कैसे ये जो आज की स्टेटमेंट, ये जो आज की स्टेटमेंट दे रहा है ये भी गलत बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, किज़ब बयानी कर रहा है। आज की स्टेटमेंट में भी, आज भी जो ये स्टेटमेंट लेके आया है ना कि जो फलानी किताब में फलाना हवाला है, ये किज़ब बयानी कर रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता, अल्लाह वाले ऐसी हरकत कर ही नहीं सकते। यार वो निशान कह रहा है 5,000 जो मांगे थे उसका तो बताना, 5,000 रुपए जो तूने निशान से मांगे थे वो किस चक्कर में मांगे थे? यार डॉक्टर ने मान ही नहीं रहा कि मैंने मांगे थे। वो कुछ दिन के बाद अगर कुछ दिन, आपको पता है इसने अपने सगे बात को नहीं माना था, याद है? अच्छा अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ, किसी स्क्रीन में पता है मैंने इसे सवाल किया था, कम से कम 50 बार किया था कि इमाम साहब को बता दे तू एक बात की सगे बात की औलाद है, इसने जवाब नहीं दिया था। जो इंसान अपने बाप की गवाही न दे सके तो सगे बाप की औलाद है तो उससे क्या जवाब करूंगा? और इसकी स्क्रीन पड़ी हुई है, और इसके कम से कम उस दिन लाइव स्ट्रीम में 8 से 9 करोड़ थे। जो खुद अपने आप को हरामी साबित कर चुका हो, जो खुद अपनी माँ को रंडी साबित कर चुका हो, तो मैं क्या उससे बात करूं? मैंने नहीं कहा नहीं डॉक्टर ये ज्यादा हो गया, थोड़ा सा मसाला कम कर दे। अच्छा इमादुल इस्लाम ये बताओ। नहीं ये मेरी बात नहीं है काशिफ भाई, इसी ने कही थी,
इसने अपने बाप को सगा और हलाली बाप नहीं माना है। अब वो स्क्रीन पुरानी पड़ी होगी, एक 7-8 महीने पहले की स्क्रीन है, बल्कि 1 साल पहले की। अच्छा इमादुल इस्लाम, तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है? तुम्हें पुलिस वालों ने मारा है मिर्जा जेलमी की के बारे में जो तुम स्टेटमेंट देते थे लाइव आके? तुम्हें पुलिस वालों ने तुम्हारी फैंटी लगाई है? क्योंकि तुम्हारा चेहरा जो है ना वो काफी बदला बदला लग रहा है। या मुझे नफरत लग रही है तुम्हारे चेहरे पे, या पुलिस वालों ने पैंटी लगा के इसको मनहूस कर दिया है। डॉक्टर निशान, ये आपका क्या कहना है इसके बारे में? इसका चेहरा काशिफ भाई मेरी आवाज आ रही है आपको? ये पैंटी वैंटी काशिफ भाई काफी बदल गया है ना? काशिफ भाई मेरी आवाज आ रही है? डबल पेनिट्रेशन से ओरल सेक्स केस में। हाँ, तेरा बेइज्जती कराने का टाइम हो गया है, तेरा बेइज्जती कराने का टाइम हो गया है। असल में इसको क्या लगता है कि इसकी बात का जवाब मिल जाए, जिस बात का सर पैर ही नहीं है, जिस बात का कोई सर पैर ही नहीं है, इसलिए कसम खुदा की उस दिन कृष्ण रसूलुल्लाह की इबारत में इतना झूठ बोला, और जैसे ही इबारत लगा के पड़ी ना भाग गया, जैसे ही इबारत लगा के पड़ी तुरंत भाग गया। अहमद ये बताओ कि तुम्हें बताओ, आज तुम्हें बताना पड़ेगा कि अभी मैं तुमको सवाल करता हूँ, क्या एक बात की हलाली औलाद हो? ये देखो, और देख लो दोस्तों, इमाम शैतान क्या तुम एक हलाली बात की औलाद हो? ये डॉक्टर माइक करीब करो, माइक करीब, डॉक्टर माइक करीब करो, माइक। ये लो, इमाम शैतान क्या तुम एक बाप की हलाली औलाद हो? इमाम शैतान क्या तुम एक बाप की हलाली औलाद हो? लो, देख लो। अरे कंजर इंसान, तुम ये अच्छा एक बात बता, तूने मुझे अपनी बहन दी है निकाह में? हाँ, या मैं तेरा जीजा लगता हूँ जो तू हर सवाल हमसे करता है? हमारे भी सवाल का जवाब दे दे भाई, कि कहाँ लिखा कुरान और हदीस से साबित करो कि औरत से कश करना 10 साल की बच्ची को, साबित करना। भागना नहीं है, भागना नहीं है, काशिफ चौधरी भागने नहीं देगा। ना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। यार ये बातें चलो कोई बंदा जरा अच्छी तेज कर लेता है, लेकिन असल चीज तो किरदार है, असल चीज तो अमल है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। हमें अमली तौर पर कोई कुछ करना चाहिए यार। कोई मर्जाई फाड़ के ले आओ, फाड़ फुड़ के तरला तुरला गिट्टे गोडे फाड़ के ना जुट जट के ले आओ। तो उन्होंने मैं बात कर रहा था वो निशान ही हो गया। मैं चाहता था आज ताहिर महमूद अमजद साहब को कि गरम गरम करके तो मैं उनको कहूं कि अपनी ब्रॉड ऑन करें। जो ज्यादा अपने आप में समझता है ना मर्जाइयों का बड़ा डिबेटर, उसको लाएं, कोई अरेंज करें गुफ्तगू। होता नहीं है, कोई ये झगड़ा ही चलता रहता है सारा दिन। कोई अमली तौर पर भी कोई हो जाए, कोई गुफ्तगू ना अरेंज्ड गुफ्तगू, बज के गल होए करे। इस तरह नहीं हो सकता कोई। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके साथ और ज़िया रसूल के साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इन दोनों बंदों की तो मैं गवाही देता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत फॉलो किया है, बहुत देखता हूँ। आप उस दिन गए नादर की ब्रॉड पे, उसी ब्रॉड की मैं बात करूँ जहाँ पे गए, आपने बात शुरू की तो आपको नीचे उतारा और फिर बाद में कहना लगा इसको लो, आज इसका मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट करूँ, इसको लो, इसको बुलाओ यार, इसकी वीडियो बनाओ, वो अच्छा खुद उतार के, ठीक है। तो फिर वो शुरू हो गया नादर ना ऐसी बातें करना। मेरे पास आपका नंबर नहीं था, वरना मैं आपके साथ रब्ता करता, ठीक है। तो आपने पहले गए ब्रॉड पे, जैसे आपकी बात सुनी, ओहो हो यार ये गलती से आ गया, इसको बैन किया हुआ था हमने तो उठाना ही नहीं था, ठीक है। तो जब आपको उन्होंने नीचे उतारा और जब आप वहां पे देखा, जब आप चले गए किसी वहां से, उसके पेज पे नहीं है, तो फिर पीछे से आवाजें लगाना शुरू की। उसकी वजह है भाई, क्योंकि आप जो है ना, आप माशाल्लाह जो बातें करते हैं ना, उसका जवाब नहीं है उनके पास, ठीक है। जिस बातों पे वो उलझाते हैं ना बाकी मुसलमानों को, मैं बाकियों को देखता हूँ डिबेट में, वो कभी फिक्र मसालों में बंदों को उलझा लेते हैं, कभी किसी जगह पे उलझा लेते हैं, लेकिन आपका जो मौकफ और आप जो बात करते हैं वो हकीकत में बात करते हैं। जो आज भी आपने बात की है, क्या बात हो सकती है और उस पर और क्या बात हो सकती है? ठीक है, कुछ उलमा ने
یا کچھ بندوں نے اگر کوئی، میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا، میری اتنی تحقیق نہیں ہے، آپ نے تحقیق کی ہوئی ہے، اگر انہوں نے کچھ اپنے نظریات ایسے لکھے ہوئے ہیں جو غلط ہیں یا اسلام کے منافی ہیں، تو ہم تو اون نہیں کرتے نا کسی ایسی چیز کو. ہمیں مسلمان بننے کے لیے کسی بھی بزرگ، جیسے میں کھلے عام بتاتا ہوں، میں کبھی اس چیز کو ہائڈ نہیں کرتا، میں درباروں پہ بھی جانے والا بندہ ہوں یہ وہ، لیکن میں کبھی شرک نہیں کرتا. میں کبھی کسی بزرگ سے یہ نہیں مانگتا کہ اے بزرگوں میں ادھر آیا ہوں تو یا مجھے یہ چیز چاہیے یا یہ نہیں. میں ان کے لیے بھی دعا مانگتا ہوں، میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہوں، سورۃ یاسین پڑھتا ہوں، میں تلاوت کرتا ہوں، ان کے لیے بھی دعا مانگتا ہوں، مغفرت کے لیے، اپنے والدین کے لیے مانگتا ہوں، اپنے لیے بھی مانگتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ایک انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہوئی ہے. ہمارے علاقے میں کڑی شریف والے میاں صاحب ہیں، انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہوئی ہے، اس ناطے سے ہم جاتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، ایسا کوئی ہے نہیں ہے، لیکن کوئی بھی ایسا کام یعنی کہ سر کو جھکانا ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جس میں شرک ہو، اللہ معاف کرے کہ مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ قیامت والے دن اللہ نے یہ نہیں پوچھنا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا آہستہ آہستہ. انشاءاللہ میں کہتا ہوں یہ جھگڑا نہ کریں، یہ چیزیں آہستہ آہستہ خود ہی، کیونکہ اب مطالعے کا دور ہے، علم کا دور ہے، کمیونیکیشن بڑا تیز ہو گیا ہے، بچے کی جیب میں موبائل ہے، قرآن 360 احادیث با ترجمہ، یہ لڑکے پڑھیں گے، اگلی نسل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ساری جو گمراہیاں پھیلی ہوئی تھی معاشرے میں ختم ہو جائیں گی. چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، ان کے بارے میں آپ فکر نہ کریں. ڈنڈا پیر صاحب تشریف لائے ہیں، ملک کیسر صاحب آئے ہیں، یوسفی صاحب ہیں، انہوں نے کوئی بات کرنی ہے تو ان کو بھی ہم موقع دیں. لیکن عامر بھائی، ڈنڈا پیر صاحب سے ایک سوال کر لوں میں؟ کریں. اچھا سر جی، آپ سے سوال یہ ہے کہ آج یہاں پہ بات ہو رہی تھی، یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے 2 پیروکار آئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہم اہل سنت ہیں. اچھا پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ان کی جماعت چھوڑ کے آتے ہیں وہ ہوتے تو پہلے ہی اہل سنت ہے نا، تو بعد میں پھر ان کو مرتد کیوں کہتے ہیں؟ اہل سنت سے اہل سنت میں آ جاتے ہیں، واپس بھی نہیں آتے نا عمر بھائی، پھر اہل سنت سے اہل سنت ہی رہے نا، صرف مرزا صاحب کا انکار کیا نا. اگر کوئی تو وہ مرتد کیسے ہو جاتا ہے؟ اہل سنت ہو جائے گل ٹھیک ہے، مرزائیت چھوڑ کے اگر کوئی وہ اہل سنت ہو جائے جو ہماری نظر میں اہل سنت ہے، تو یہ اس کو مرتد کیوں کہتے ہیں؟ اہل سنت سے اہل سنت میں گیا، مرتد کیوں ہوا بھائی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو آپ کا جو گزرتے سر میں تو ابھی اٹھاؤں، لیکن میں نے جو پیج دیکھا تھا نا جو آپ نے لگایا ہوا تھا، وہ پیج ایسا تھا جو ٹریگر چل رہا تھا کہ جو ہر مسلمان کو، مطلب چاہے وہ احمدی ہے یا جس بھی فقہ سے تعلق رکھتا ہے، فرقے سے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، اہل سنت ہے، ہر مسلمان کو وہ آج ہٹ کر رہا تھا اور سوچنے پہ مجبور کر رہا تھا، کیونکہ اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ جو مرزا صاحب کو نہیں مانتا وہ کافر ہے اور پکا کافر ہے. اب یہ جو چیز ہے